ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ सीकर भाई पॉइंट टू बी नोटेड, फलाना शातमियत कर रहे हैं तो फलाने दी शातमियत करो। दोबारा सुने, जोड़ जो ये जो मिर्ज़ाई भौंकते हैं ना अंबिया पे आके, उम्महातुल मोमिनीन पे, साहबे रसूल पे, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? इसके अपने मिर्ज़ाई भाई की ज़ुबानी सुन लें। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆਵੇ ਜਮਾਤ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਵੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸਕੁਆਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 10-12 ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਟ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ ਹੇਟਡ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲਵ ਔਰ ਆਲ ਹੇਟਡ ਫਨ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਦੇਵੇਂ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਮਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇਰੀ ਪਾਇਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਸਲਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜਵਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਜਮਾਤ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਕੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਤ जितने उलमाए का ले जी राजा अताउल मनान साहब, घर से गवाही आ गई है कि आप थ्रेट करते हैं लोगों को, लोगों की माओ बहनों बेटियों को गालियां दिलवाते हैं। पीछे अमन कमेटी के नाम से जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें आप इनको गाइड करते हैं कि जाओ फलां की शातमियत कर दो। इधर मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई बात हुई है, जाओ जाके शातमियत कर दो। आप क्या अपने भाई बता रहे हैं? आप अगर भूल गए हैं तो ये जो हमारी ये बहन है, सफिया बहन है, इनका जब केस चल रहा था उन्होंने इनको मुखातिब करके कहा कि राजा भाई मैंने आपसे बात कर दी। उन्होंने कहा मैं आपसे इस मामले में इंडल्ज नहीं होना चाहता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। हाँ जी, अब मुझे बताए कि ये सारा जगह सारा, वालेकुम सलाम जीमा भाई, ये सारी जो गेम कल इन लोंडों को किसने एक्टिवेट किया कि तुम चढ़ के तो ब्रॉडे लगाओ उस खातून को, बताओ जी कि वो खातून का जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं है। राजा अताउल मनान, कल हड़बड़ी मची हुई थी, कहां से पैगाम आया था कि फटाफट जाके जनाब फौरन उनका मनाजरा रुकवाओ जाकर। बड़ा उत्ते जैसे स्कॉलरली मनाजरा हो रहा सी उत्ते, उनका मनाजरा रुकवा के फटाफट जाके सीकर दा नाम लैके पैगाम दो, फटाफट जाके। भगदड़ बची हुई थी, क्या हुआ था ऐसा, क्यों इतने पिसू पड़ गए थे? अब मैं जाहिद भाई एक और केस आपके सामने रखना चाहता हूं और सब भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। भाइयों आप नोट करें कि जब हम कहते हैं ये गैरतमंद नहीं जरूरतमंद है, आप नोट करें कि कल मैं चाहता हूं गवाही दे या जितने अहमदी हैं, कभी मेरे मुंह से एक दफा सख्ती के अल्फाज कुछ निकले थे तो मैंने उस पर माजरत की थी, मैंने रुजू किया था, मुझे आसिफ भाई ने उसी टाइम करेक्ट करवा दिया था। कभी हमारे मुंह से यह निकला हो पाकिस्तान में इनकी मसाजिद तोड़ दो या इनकी इबादत गाहें तोड़ दो, इनकी किताबें जला दो, जाया करो, उठा दो सारा कुछ, कभी हमारे मुंह से आपने ये सुना है तशद्दुद के अल्फाज? कभी भी नहीं। कल हम क्या कह रहे थे कि यार और प्रोटेक्शन दो, इनको बचाओ, इनको सेव करो, यही कह रहे थे ना हम? बिल्कुल ठीक हो गया, इनका हक है जीने का। आप अंदाजा करें, हमें कहा गया गालीबाज और हमें कहा गया कि ये जानबूझकर जमात के खलीफा को टारगेट कर रहे थे, निजाम को टारगेट कर रहे थे। और ये असूली तौर पर साथ किसके खड़े थे, किस ब्रॉड के ऊपर बैठे थे और किन लोगों के साथ जो हमारी माओं को गालियां नंगी दे रहे सुबह शाम। उस ब्रॉड पे उसी टाइम गाली भी दी गई थी अपना। जी 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 जी, वो तो पार्ट एंड पार्सल है ना जी, मुंह खुलना तो गाली निकलनी है उधर। ये सुने, ये अपने इनके ये मूसा साहब है डिक्लेयर्ड शातिम, जिनको उसने जरीउल्लाह ने शातिम कही, उन्होंने ऑडियो अपलोड की हुई, मैं उन्हीं की सुनवा रहा हूं, ये सुन ले।
और पाकिस्तान के तूल और अर्ज में लोगों की तरफ से ये मुतालबा आना शुरू हो जाए कि ये जो मजहब है ये मजहब नहीं है, इसका कोई मिनॉरिटी मजहब के तौर पे इसका कोई स्टेटस जो है वो जायज नहीं है, इसको बिल्कुल डिक्लेयर करें कल्ट, और इसकी किताबें बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में, इनका वेबसाइट परमानेंटली ब्लॉक होना चाहिए, किताबें इनकी जामे नजर आए उनको जलाएं, इनकी मसाजिद को बिल्कुल खत्म किया जाए, ये कोई इबादत गाह नहीं है। इस नफरत अंगेज बयान के एक हफ्ते बाद जमात अहमदिया के अफराद का मौलवी इम्तियाज और मौलवी अदनान से मुनाजरा हुआ। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई किसने अपलोड की हुई है? ये मूसा साहब ने अपलोड की हुई है जी जी। अब जाहिद भाई जो इनकी किताबें पाकिस्तान में जलाने, मुतशद्दिद बयान है ना, पाकिस्तान में किताबें जलाने, इनकी इबादत गाह मिसमार करने, सबकी जो बात हो रही है, वो बंदा इनके लिए वो उसके हक के लिए खड़े हैं। लेकिन जो खवातीन मलेशिया में बैठी है, जो दुहाइयां दे रही हैं तुम लोगों को कि बगैर तो इधर ध्यान कर लो, खुदा का वास्ता इधर ध्यान कर लो, उधर तुम लोगों की गैरत नहीं जाग रही, और तुम कह रहे हो सो कॉल्ड वुमेन, इधर तुम्हारी गैरत नहीं जागती। सिर्फ आखिरी बारी ये मैसेज करना ही है कि मैं तुम दस दवा कि मेरी बच्ची ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਬਗੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਗੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ कुछ ਹੋਇਆ। ओए बेशर्मो, इधर भी कुछ कर लो, तुम्हारे है ना ताल्लुकात। और डायरेक्ट एक का अपने ग्रुपबाजी में खराज करवाया, एक बेगैरत का, शातम का, और इसका क्यों नहीं खराज करवा लेते? कौन सी ऐसी तार है जड़ी डिस्कनेक्ट हो गई है तुम्हारे प्यारे हजूर की, जहां तक नहीं पहुंच पा रही, इन माओं की दुआइयां नहीं पहुंच पा रही, वैशी दरिंदे नोच रहे उनकी बच्चियों को। नहीं सिकर भाई, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो बेचारे असाइलम के चक्कर में वहाँ पे मलेशिया में बैठे हैं, हाँ। उनसे भी चंदे बटोर रहे हो, उनसे भी चंदे ले रहे हो, जिनको बेचारों को यूएनओ खाने के लिए चंद टुकड़े रोटी के देता है, उनसे भी चंदे ले रहे हो बगैर तो। तौबा तौबा। उनकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? उनकी असमत की हिफाजत कौन करेगा? उन्हीं चंदों के ऊपर पलने वाले सीकर भाई, अफसोसनाक बात यह है कि वो बेचारे जो दाने दाने को तरस रहे हैं, जो रोटी को तरस रहे हैं, जो पानी को तरस रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, वो फिर भी चंदे दे रहे हैं, यूएनओ से मिलने वाली एड से भी चंदे दे रहे हैं, और उन चंदों से मुरब्बी पल रहे हैं फैजान जैसे। उन्हीं चंदों से कुत्ते पाल के उन्हीं औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वहां पे तुम्हारी गैरतें नहीं जागती। और हमारा उससे भी कंसर्न नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जाहिद भाई मुझे एक बात बताएं, जाहिद भाई अगले दिन ये जो 300 बंदे अरेस्ट हुए हैं, सालाना जलसा मुनक्किद कर रहे थे चोरी छुपे, मलेशिया में 300 अहमदी अरेस्ट हो गया, मर्द अरेस्ट हो गया ना, ठीक है। अब जाहिद भाई उन 300 जो मर्द अरेस्ट हुए हैं, उनकी जो वहां पर फैमिलियों में खवातीन है, वहां पे जाहिद भाई उनका क्या बनना है? दरिंदों ने नोचना है। अच्छा सीकर भाई मज़े की बात यह है कि 300 बंदे वहाँ पे आप जलसा करवा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को झूठ दजल फरेब फैलाने के लिए आप वो कोशिशें कर रहे हैं जलसा करने की, उसके लिए आप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो वहाँ पे बेचारे फंसे हुए हैं, उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको फैजान जैसे कुत्ते नोच रहे हैं, कसाई के फट्टे के नीचे पड़ी हुई हड्डी समझ के। बिल्कुल बगैर तो तुम्हें कोई शर्म है, कोई हया है? इंसाफ मांगते हो स्टूडेंट लौंडे, इंसाफ मांगते हो अपनी ब्राड के ऊपर बिठा के कि मैं अपनी एक बहन के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। ये तेरी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं जिनकी इज्जतें फैजान मुरब्बी लूट रहा है, जिनकी मलेशिया में इज्जतें लूटी जा रही हैं, वो तेरी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं। आप किसको मुखातिब कर रहे हैं? नाम तो बताएं। वो स्टूडेंट नाम का एक लौंडा है राजा। अच्छा, वो आ गया, उसका जवाब आ गया, सुन ले। एक इनको वो टिकटॉक पे वीडियो मिल गई है किसी को, वो मलेशिया की, वहां पे इनको बड़ी फिक्र हो रही है, जिसका इनको ना आगे का पता ना पीछे का, लेकिन अपनी जो इनकी माएँ बहनें बेटियां रो रही हैं इंसाफ के लिए, उसके ऊपर इनका जमीर नहीं जाग रहे। तो ये हमारे प्यारे कैसर भाई भी आए, इनको भी हम शामिल गुफ्तगू।
ये तो ये मुझे जी। लग रहा है मेरी तरफ से जवाब दे रहा है, ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मेरी तरफ से जवाब दे रहा है। जिनका ना आगा पता ना पीछे पता, तू शुक्र कर खुदा का कि पुत्र तुम्हें रिफ्यूजी बन के नहीं जाना पड़ गया मलेशिया। तो खुदा का शुक्र कर, नहीं तो ना तेरा आगा रहना था ना पीछा रहना था। वो जरा एक बार दोबारा आगा पीछा रिपीट कर दें, उन बंदों के नाम रिपीट कर दें। मैंने तो repeat जो कर- आपके सामने रखा विद नेम आप लोगों को बताया कि कौन कौन मुलव्वस हैं उस खातून के साथ ज्यादती, बाकायदा आपको वीडियो दिखाई है, उन लोगों के नाम बताए हैं, उनके चेहरे दिखाए हैं। आप भी ज़रा रिपीट करें जी उन बेगैरतों के नाम, ज़रा इनको आगा पीछा पता चले। ये सुन ले भाई आगा पीछा। ये जी मैं आपको बता देता हूं, मुबशरा जिया नाम की खातून है वहां पे, जरा गौर से सुन लो, नोट कर लो। सब जानते होंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं जाहिद भाई, ये सब जानते होंगे इस औरत को। मुबशरा नाम की औरत है। मेरे पास इसका एक ऑडियो क्लिप भी है जो मैं नहीं चला सकता, जो मैं चला नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। मुबशरा जिया जो है वो एज अ हेंचमैन, एज अ गो गेटर, ये मैं अब इससे बेहतर अल्फाज वो बहन इस्तेमाल कर गई थी, लेकिन मैं अल्फाज को चुनाव जो है मुझे अच्छा इससे मिल नहीं रहा कि मैं क्या करूं, बल्कि मैं ये कह देता हूं नायका, मैं कह देता हूं कि ये नायका, ठीक हो गया जी, नायका के तौर पर ये काम कर रही हैं वहां पर। मैं इससे बेहतर अल्फाज नहीं यूज कर सकता और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये नाम नोट कर लें स्कूल का, ELS बातू, BATU, ELS बातू 16 ब्रांच। ये मैंने पीछा दे दिया है, आगा चेप जाके यहां पे अपने बाप के पास जाके। अब ELS बातू 16 ब्रांच 3 साल से ये जमात का स्कूल रहा है। यार ये जरा 2 मिनट रुक जाए जरा, तो वो डिस्टर्बेंस होती है, 2 मिनट रुक जाए। 3 साल से स्कूल रहा है जिसके अंदर ये रेफ्यूजीज की बच्चियां पढ़ रही थी, अब वो स्कूल बंद हो गया। 3 साल इसको हेड कौन करता रहा है? यही दरिंदा जिसकी नायका है वो। अब उसी दरिंदे के नाम पर ये नायका पैसे इकट्ठे कर रही है लोगों से और कह रही है बच्चों को अडॉप्ट करो, इनके लिए पैसे दो हमें। वो घर नहीं लेके जाना बच्चों को, वो कीमत बता रही है कि इन बच्चों के खर्चे के लिए हमें पैसे दो। ये नायका, मतलब मैं क्या कहूं कि इसके लिए क्या क्या अरेंज किया जाता है इस मुरब्बी फैजान के लिए। ये तो हमें अहमदी अब राब्ता कर रहे हैं, हमने बात उठाई है, राब्ता हो रहा है हमसे। हाँ, ज़रा इनकी माओ बहनों बेटियों के भी नाम बता दे जिनके इखराज के लेटर के ऊपर साइन है इनके मुरब्बी फैजान साहब आगा पीछा नामालूम के। जाहिद भाई ये तो नाम की बात कर रहे हैं, मैं एम्स नंबर बता देता हूं, मैं एम्स नंबर बता देता हूं। ये लो भाई, पहला है जी उस्मान साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम, एम्स ID 4971। खोलो सारे डेटाबेस अपने, निकालो कहां का ये। इसके इखराज के ऊपर पता साइन किसके हैं? मुरब्बी फैजान अहमद, वही दरिंदा, उसके साइन है इसके इखराज के ऊपर। आगे सुनो दोस्तों, गौर से कान खोल के सुनो। गुलाम फातिमा, विडो ऑफ मोहम्मद अकरम, ये पूरी फैमिली गई जाहिद भाई, मां और बेटा दोनों निकाल दिए। बिल्कुल दोनों गए। मां और बेटा दोनों निकाल दिए। इसका एम्स नंबर चाहिए, मैं दे देता हूं 3604। आगे चलो, तुम्हें तो यह भी पता होता है ये एम्स नंबर कौन से साल का होता है, कहां का होता है। आगे सुन लो भाई, आगे नाम फरहान अहमद भुट्टा, बाबर अली शाह, फहद अहमद, आफ्ताब अहमद, फातिर अहमद भट्टी, जकिया सुल्ताना। ये तमाम तर लोगों को बेशर्मो ये इखराज के ऊपर इसके साइन हो रहे हैं। ये रिसेंट हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। ऐसे दरिंदे को तुम लोगों ने अपनी बहन बेटियां वहां पे इसके हाथ में दी हुई हैं और इधर बैठकर ढोंग करके कहते हैं हम फलाने को इंसाफ देने लगे हैं। असूली तौर पर हम साथ खड़े हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई आप जाके पंगा लो बीच में आके? आप आए कैसे हैं बीच में? आपकी जुर्रत कैसे हो? आप सो कॉल्ड वुमन कह के इस क्लेम को आप साइड पे करने की कोशिश करो, अहमदियों को तासुर देने की कोशिश करो कि ये झूठ बोल रहे। अगर कोई अहमदी सोच भी रहा हो बेचारा रिपोर्ट करने के लिए, वो तीसरा आपने अपनी
वो दुखी छोड़ी होती है नीचे, वो चापलूस छोड़ा होता है विर्क नाम का, पाकिस्तानी नाम का, जो पैरा देख के कल 5 घंटे मेरी ब्रॉड पे बैठा रहा कि ऊपर एक अहमदी बैठा हुआ है, मैं इससे राब्ता करूं किसी तरीके से कि ये काम मलेशिया के पत्ते करता फिर रहा है। लानत तो ऐसे शख्स की जिंदगी के ऊपर, इस तरह का बेशरम इस काम के लिए छोड़ा होता है। दलाल बना के रखा हुआ आप लोगों ने उसको, जो राब्ते कायम कर रहा है लोगों के साथ, उसको मना कर रहा है कि तू खवातीन के पीछे ना जा। कल एक अहमदी चढ़ा है, उसने हामी भरी है कि यार मैं पता करूंगा, मैं मलेशिया में पता करूंगा। वो नीचे कह रहा है प्लीज इफ यूर अहमदी लीव दिस ब्रॉड। ये ईमान ना तेरा खराब कर दे, तेरे में गैरत ना की काय जगा देंगे लोग बैठ के। कैसे तुम लोग यार बेशरम लोग हो। क्या हो रहा बहन, मातम हो रहा है इधर। जमात अहमदिया की लाश सामने पड़ी है, निजाम जमात बदबू मार रहा है, बदबूदार बदन की तरह यहां पे पड़ा हुआ है सामने जमात अहमदिया का निजाम। जाहिद भाई ये जूम करके इसकी शक्ल दिखाएं, मुरब्बी की भी, और उस बेचारे खामद की शक्ल दिखाएं यार, जो पिट रहा है बेचारा। शक्ल के साथ आ गया खामद लड़की का। और तुम लोगों को क्या चाहिए? कैन आई हाईजैक योर ब्रॉड फॉर 5 मिनट? जी जी आ जाएं, अगर आपने हमें वो करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएं। पहले की तरह मेरा ख्याल है जमात अहमदिया में तो कोई गैरतमंद बचा ही नहीं है कि वो आके सामने बैठ के कम से कम कंडेम ही कर दे। तो आप ही बची हैं हमारे पास, पहले की तरह के आके हमारा मौजू डाइवर्ट कर दें। आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी क्या चाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह करम। आप बताएं। बाजी पहले भैया बताए मम्मा की तबीयत कैसी है अब? स्टिल इन हॉस्पिटल। से अल्लाह पाक से। जी बहन। अच्छा, मैं बिजी चल रही हूँ आजकल बहुत। वही अभी जिस तरह से चौधरी ने हाल पूछा तो वो अम्मा भी अस्पताल में है और कोर्ट का भी काम चल रहा है। लेकिन मैं बस एक बात राजा अताउल मनान भाई से करनी चाहती थी, अगर आपको इजाज़त दो तो आपकी ब्रॉड के तवज्जुह से कर लूँ। जी जी कर लें कर लें कर लें। जज़ाकल्लाह। क्योंकि राजा भाई आप सोचेंगे कि मैं इस ब्रॉड पे आकर आपको क्यों पैगाम दे रही हूँ, इसलिए कि मैंने आपसे डायरेक्ट भी पूछा था राजा भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस वक़्त आपका जवाब आपको अच्छी तरह याद होगा। अच्छा, कल जो है ना, मैं फॉर यू दीवार पे से गुजर रही थी, मैंने 5 मिनट के लिए ऑन किया तो मुझे एकदम राजा अताउल मनान भाई की आवाज़ आई कि सो कॉल्ड औरत, बिलीव मी, मुझे लगा मेरे बारे में बात हो रही है। फिर मैंने कहा नहीं, राजा भाई का ये कैलिबर नहीं है। वो जो यंग ब्लड है ना, जो राजा भाई के बच्चे हैं, वो औरतों की इज्जत को टिकटॉक पे सामने सामने तार तार कर देते हैं, लेकिन वो यंग ब्लड होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो कोई इंसाफ की भी बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो मतलब इतनी जल्दी सारा कुछ क्यों भूल जाते हैं? उनके साथ जो बैठे हुए थे ना स्क्रीन पे ही, उनके अल्फाज थे मेरे बारे में कि अगर अब ये औरत अपनी जान की भी कुर्बानी दे देगी ना तो भी इसकी माफ़ी कबूल नहीं होगी। ओए ओए ओए। और ये अल्फाज रिकॉर्डेड हैं। ये मसरूफ का नाम ले दें, कौन थे? वही जो कि नंबर शेयर करते हैं, जो ब्रॉड लगाते हैं, जिसकी ब्रॉड के ऊपर सारे अहमदी बैठ के तबलीग करते हैं। चले आप थोड़ा कह रहे, मैं जिसको गुद्दी कुत्ता कहता हूँ, शेख आदि। मैंने तो आज तक किसी को कुत्ता भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे ख्याल में कुत्ता बहुत वफादार होता है। इसीलिए वो अल्फाज मैंने खुद अदा किए हैं ताकि आपके ऊपर बोझ ना आए। चले वो अल्फाज नरम रखते हैं, इनका वो चल रहा है केस, उस पे वही ना कोई पंगा ही ना पड़ जाए। जी। अब वैसे भी है कि सीखा, देखो जहाँ पे जो गलती हुई है ना मेरे से, मैं अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट करने से नहीं शर्माती। मैंने जो है ना कभी किसी खलीफा के बारे में, ना मिर्ज़ा साहब के बारे में, मैंने तकलीफ में आकर एक आम इंसान को नाम बोल दिया और साथ में जो है कह दिया कि वो है। इस बात के ऊपर मुझे ये कहा गया कि अब अगर ये अपनी जान भी दे देगी ना तो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे याद है कि अफजल बराज भाई मेरे आज भी बहुत प्यारे भाई हैं। आप लोगों में से किसी से भी मेरा कोई मसला नहीं है, आप लोग आपस में हो, आज कुछ है कल कुछ है, वो उसमें मेरा कोई नहीं है।
लेकिन अताउल मनान भाई, खुदा के वास्ते, बेटियां बहनें सबकी साझी होती हैं। हो सकता है खुदा ना करे आपके घर में इस वक्त ये मामला चल रहा हो, तो इसलिए अगर कोई, आप ये ना सोचें कि जमात बदनाम होगी। जमात बदनाम नहीं हो सकती। अगर ये इलाही जमात है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके कारपेट के अंदर फेंकने से चीजें जरूर बदनामी होती है। मुझे याद है वो वक्त कि जब क्या नाम है, टी अहमद, अब क्या नाम है उनका, ख्वाजा साहब, वो आए थे और उन्होंने बड़े गरूर से और बड़े उससे कहा था कि लग गया पता आपके खराज का, पता चल गया रीज़न, और उस अल्फाज भी उनके नामुनासिब थे। वो ऊपर आए, वो बात करना शुरू हुए। उस वक़्त फ़ौरन राजा भाई आप आकर उनको उतार कर ले गए। वो दिन है, आज का दिन है। वो मुझे कहते हैं मैं आपको प्राइवेट में बताऊंगा रीज़न। राजा भाई ये चीज़ें आप क्यों ऐसा करते हैं? आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप वाकई दिल दुखाते हैं। आप जिसको भी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे ज़्यादा कहूँ, जज़ाकल्लाह जी फॉर गिविंग मी टाइम, लेकिन अफसोस है। और ये जो मनहूस सामने लगाया हुआ है ना, मैं वैसे मैं आपसे एक जाने से सवाल पहले मुझे मैं पूछना ये चाहता हूँ। मनहूस सामने से करें, फिर हटा मेरा दो। भी सवाल है। ये एक मिनट रुक दुनिया जाए। का गंदा तरीन शख्स सामने लगाया हुआ है तुम लोगों ने, सॉरी आप लोगों ने। माजरत के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाजी, आपकी तस्वीरें जमात अहमदिया के लोगों ने बनाई चोरी से? मेरी बनाई, मेरे बाप की बनाई। बनाई। अब आप इन बेगैरतों का और मुसलमानों का मवाजना कीजिएगा। खातून खुद चेहरे से आई हैं, लेकिन जिसने अपलोड किया ना, उसने उसका चेहरा छुपा दिया है। जो खातून खुद चेहरे से आई थी, और ये बेगैरत चोरी छुपे तस्वीरें जाके ख़वातीन की खींच के उनके बाहर खड़े होके फील्डिंग लगा के मौके का इंतज़ार करके तस्वीरें बनाते हैं, और तस्वीरें बना के उन ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। उन पे अफसोस नहीं होता। अफसोस उन पे होता है कि जब राजा अताउल मनान भाई जैसे जो जमात में इतना एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, वो उनकी पुष्पनाई करते हैं। दूसरी बात है, ये जो बंदा सामने तुम लोगों ने लगाया हुआ है ना, आई एम सॉरी, आप लोगों ने, मुझे वाकई इसको देख के गुस्सा आ रहा है। ये अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है और अगर मेरी आवाज़ में इतनी जान है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में तो मलेशिया ना आए। मलेशिया में जो कुछ हो रहा है सब मिले हुए हैं, लेकिन ये जो बंदा सामने है ना, ये सबसे डेंजरस है। अब मेरे पास कैसे ये सारी खबरें हैं, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनको मैं बेटियां मानती थी, मानती रहूंगी, दे आर फ्रॉम मलेशिया। खुदारा जिनसे आपका इन्होंने क्लासेस बंद करवाई थी। अल्लाह अकबर, और वो मेरी बेटियां अल्लाह। रहेंगी जिंदगी भर। लेकिन जो जो वाकयात मुझे वहाँ के पता हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सारी अमीर साहब को एक तरफ कर दो। ये जो बंदा है ना, जो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी टोपी पहन कर, ये इंसान नहीं है। प्लीज़ इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर लें आप लोग, जमात वालों कर लो। कल मैं वहाँ नहीं भी मौजूद थी, तो लजना आ रही थी और लिख रही थी कि बाद में क्लिप्स आए हैं कि सफ़िया साहिबा जो है वो देती हैं मौका सीकर को कि वो बदतमीजी करे। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इसको कंट्रोल कर लें। नहीं, आप यहाँ पे रुक जाए, आप यहाँ पे रुक जाए। सिकर भी, मेरा ख्याल है इसके ऊपर बाजी से बिल्कुल कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जो है ना, वो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है आपका? नहीं, इस पे नहीं लेते। मैं एक और चीज पर सिर्फ आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। बहन, मुझे एक बात बताएं, आपके साथ तो जमात अहमदिया खड़ी नहीं हुई थी, और वो सिर्फ इसलिए मैं नहीं हुई रिक्वेस्ट थी। करूंगी, पहले ये तस्वीर हटाओ। लिटरली मेरे ना वो तकलीफ हो रही है मुझे, मेरे दिमाग में वो बच्चियां आ रही हैं जो रोते हुए, जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई हुई है ना, मेरे कानों में गूंज रही है वो आवाज़। अच्छा बहन, जमात अहमदिया के कुछ, मतलब मैं ये कहूंगा राजा साहब के कुछ बच्चे हैं, चले आपके लिए, आपके सामने हम वो लफ्ज यूज करते हैं, उनके कुछ बच्चे हैं, वो आजकल लगा कर ब्रॉड और एक बहन को इंसाफ दे रहे होते हैं। जो बहन खुलकर उनके, जो आपके नबी है, उनको वो अल्फाज कहती है ना, मैं बोलना नहीं भी चाहता, ठीक है, आपके सामने। लेकिन बहन मेरी, और इन शख्सियत को भी इंसाफ दे रहे होते हैं जो आप जिनको मानती हैं, उनको ये सब कह रहा होता है। लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता आपके मौजूदगी में, आपका कोई मामला खराब ना हो। आपने ऑडियो सुन ली है जो मैंने चलाई थी पहले? हाँ जी, हाँ जी, चलें, हम ठीक। सुन रही थी।
या मगर दिलवाएं, जरूर दिलवाएं, लेकिन हाँ खुदा के वास्ते पहले अपने तो अंदर सेट कर लो, नहीं, अपने हमें को क्यों इंसाफ कह रहे दिलवा हैं लो। कि भाई हम यार हम इनको कुछ कह रहे हैं? हमने कल पूरी ब्रॉड, आप यकीन करें, अहमदियों के लिए बात की, हम उनके लिए हमने एक स्टैंड लिया। इनको किस बात की शर्म है इसमें? हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं उस बात के अंदर? मैंने कल की आपकी बिल्कुल ब्रॉड नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी, लेकिन कल हमने अंदाजा हो इनका रहा था। केस रखा, हमने अहमदियों के हक में आवाज उठाई, इवन के यहां तक ये उस्मान भाई भी आए हुए थे, चले गए कल, यहां तक हमने कहा यार ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, पाकिस्तान में कुछ वाकयात हो जाते हैं, होते हैं और नहीं होने चाहिए, हम खिलाफ हैं उसके, कंडेम करते हैं उस चीज को। साथ ही हमने ये कहा था कि मेरे भाइयों ये खवातीन है, अपने इस निजाम को छोड़ो या अपने निजाम को ठीक कर लो। उसके ऊपर हमने अगर भाई आवाज पहुंचा दी है, जिनकी आवाज खलीफा साहब तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसके ऊपर हमें टारगेट कर रहे हैं, ऊपर से हमें गालियां पड़वा रहे हैं अपने गालीबाजों से। मैं भी तो, मेरे साथ भी तो जो कुछ भी हुआ है वो टिकटॉक पे हुआ है ना। हाँ फर्क सिर्फ ये है कि मैं जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है वो चीख चीख कर अपने आप को मजलूम नहीं साबित करती। मैंने खामोशी से अपना जो केस चल रहा है मैं उसके ऊपर तवज्जो देती हूँ, मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, मैं बदजुबानी नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब क्या ये यही है कि जो गालियां दे, जो बदजुबानी करे, वो मजलूम बन जाता है। आप मुसलमानों को गालियां निकाल देती तो शायद कुछ काम बेहतर हो जाता, शायद कुछ काम बेहतर। आप गालियां देती, नंगी नंगी गालियां देती, या मेरे ख्याल में मिर्जा साहब को देती, जो इनका क्राइटेरिया है, जो मिर्जा साहब को गाली देता है ये उसको सपोर्ट करते हैं। वो मैंने दी नहीं थी तो लेकिन मुझे कहा जमात जान में की कुर्बानी भी दे देगी। माजरत के साथ सफिया बाजी, जमात में इज़्ज़त है हादिया की, कोली बी पॉजिटिव की, नौशी शेरनी की। जो किसी को माँ बहन की गाली देगा वो ख़ातून जो है वो जमात में इज़्ज़त भी कमाएगा, जमात में मोतबर भी होगा। और इवन हादिया की तरह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नकल कुफर कुफर नवाशद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के ऊपर बकवास करे, भौंके, वो माँ कहलाएंगी और उनके नीचे बच्चे घूम रहे होंगे और नीचे बाजी बाजी, अम्मा अम्मा, अम्मा अम्मा, खाला खाला, ताई ताई, फुफी फुफी करते हुए नीचे ये स्टूडेंट जैसे, ये खाकसार जैसे, ये जितने लौंडे लपाड़े हैं ये सारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। और प्रमोशन भी हो जाएगी अगर जमात में। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आपकी इज़्ज़त है जमात में, वरना फिर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, टके की नहीं है। वो उनकी मर्जी है, वो जिसको जितनी इज्जत देना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए इंसाफ के लिए खड़े हो ना, तो आप ये देख लें कि आपके इंसाफ का मायार क्या है। एक तरफ जो है आप साफ बात करने से मना कर देते हैं, दूसरी तरफ जो है आप ज़रा सी कोई बात होती है तो आपको फ़ौरन हो जाता है सो कॉल्ड। अगर वो जो मलेशिया वाली लड़की थी जो रो रही है, पिट रही है, वो गलत भी हो, वो कुछ भी हो, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं मेरे आपके सामने सब कुछ हुआ है ना, आपने अपनी आंखों से देखा है, आप उस ब्रॉड पे थे, आपको उस तरफ ख्याल नहीं आया कि मैं इंसाफ दिलवाऊं? आप तो कह रहे हैं ना कि अफजल बराइच, वो जो मुझे समझ आई कि वो अफजल भाई का केस सामने हुआ है और वो जो है वो एक इंटरनेट के ऊपर अननोन केस है। व्हाट अबाउट मी? राजा भाई, मेरा केस तो यहाँ पे हुआ है ना, सामने हुआ है ना। या आपको भूल गया है कि मुझे किस किस्म की और मेरे बाप को किस किस्म की गालियां मिली, किस किस्म के थ्रेट्स आए हैं, और जवाब में मैंने उन लोगों को क्या कहा है, मैंने कितनी गालियां दी हैं, बताएं मुझे। दी है मैंने आगे से गालियां? नहीं, ये सफिया सिस्टर, ये जो राजा अताल मनान साहब ने जो बात उन्होंने की है ना कल, वो कहते हैं कि ये अफजल वड़ाय साहब जो हैं, इनकी बेटियों को गाली दी गई है। अब वो गाली किसने दी है, मतलब वो जिसका नाम ले रहे हैं, अगर उनकी वो गाली दिखा दें उनकी बेटी की, हमने तो वो ऑडियो 3-4 बार सुनी है, उसमें जिस तरह अफजल वड़ाय साहब कह रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल चले, वो कहते भी हैं कि गाली दी। अबू बकर भाई नाम छोड़ दें उनका, और वो मामला अब आगे निकल गया, हम कोई प्रूफ ना दिखाना ना देना। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन सिकर भाई मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि अभी भी आईडी जो है ना वो मौजूद है फाइटर नाम की। वो फाइटर नाम की आईडी जो है वो ओपन करें, राजा साहब आप जाके ओपन करें, और उसके ऊपर देखें कि किस तरह की वीडियो जो है अपलोड हुई हैं। ये सफिया सिस्टर की, लुबना सिस्टर की,
कौसर सिस्टर की किस किस्म की जो वीडियोस हैं वहाँ पे अपलोडेड हुई हैं, और ये स्टूडेंट है या जो भी इस वक्त वो एक की हुई है। ओए होए तड़फते आप आए हैं। मैं पैगाम फटाफट और डिबेट रोको, डिबेट उत्थे लानत कट रही थी, डिबेट की हो रही थी उत्थे, डिबेट कर दी इन्होंने बह के, फटाफट रुकवा कर आए हैं पैगाम देने के लिए कि मैं इंसाफ के रास्ते में रखना डाल दूं, है मैं रखना डाल दूं बीच में। ऐसे होगा? आप इंसाफ के बीच में आएंगे और यार मजलूम खवातीन को इंसाफ देने से रोकेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक चीज देख लूं, वहां पर जाहिद भाई जब वो ये पैगाम दे रहे थे कि नीचे बंदा बैठा हुआ था, वो बंदा है रईसुल मुनाफिकीन। क्या आप नाम गैस कर सकते हैं उसका? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक ही बंदा है जो मशहूर है। वो नीचे कह रहा था छोड़ें, जाने दें जनाब, बिरादरी भी है खैर से, एक ही बिरादरी। हाँ, ये कौन है? अटेंशन सीकर्स हैं, आप इनको छोड़ दें। मैं सिर्फ ना आपको चेहरा दिखाना चाहता हूं और मुझे एक चीज सिर्फ मिल जाए फिर मैं आपको ना बताता हूं। आप करें तब तक बात करें, मैं उसको ना कर लेता हूं, बात करें तब तक। जी जी बिल्कुल। मैं तो देखे ना शिकर भाई, जैसा कि मैंने कहा कि अहमदी गाली दे ही नहीं सकता। अहमदियों के अखलाक, ये जो उस दिन हम बात कर रहे थे, क्या सबसे अच्छे अखलाक तो दुनिया में अहमदियों के हैं। लेकिन ये जब मैंने अब्दुल रऊफ़ साहब की ये सुनी है ऑडियो, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो अब्दुल रऊफ़ साहब हैं ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, काफ़ी इनकी एज है, और इस एज में बंदा मैच्योर आदमी जिनकी सारी जिसकी सारी ज़िंदगी जमात ने तरबियत की है और जमात के मुबल्लिग हैं खैर से, और ये तबलीग करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में जमात दावा करती है कि मिर्ज़ा साहब के इल्हाम के मुताबिक, मिर्ज़ा साहब की बल्कि तहरीर के मुताबिक के मुखालिफिन के मुंह बंद करने इन लोगों ने। अब ये देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गाली दे के मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी माँ की गाली, यानी कि मिर्ज़ा साहब के कॉल के ऊपर ऐसे अमल कर रहे हैं कि गाली दे के दूसरे बंदे का मुंह बंद कर रहे हैं, और वो भी माँ की गंदी और गलीज़ गाली। तो ये कौम मिर्ज़ा साहब ने प्रिडिक्ट की थी कि ये वो कौम होगी जो इल्म और मार्फत की रूह से मुखालिफिन के मुँह बंद कर दे।